So hey guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders Traders. So this is the daily analysis session of Traders Traders, and you have to be very careful. What is the market's current going on? You have to see what's the behavior of the market and the current scenarios in which the market we have been now. As I far as I can tell you that yesterday's market analysis was very important. The weekly analysis session have already said that we have been in the bearish markets, means the corrections like that, and that corrections are much more in this market. So what does that mean? That you can see the last 4 weeks we have seen the selling in this market, and still we are in the downside. And the first day only we are closing in downside up to 156 points in negative in Nifty. What does that mean? That the market are not currently showing any bullish signal, because if the market was bullish, then it could have been means already jumped very well, but it didn't well. Why? Maybe the major concerns are the UK US relation, that UK and our US trade relations, and trade war is going on also. In after that we have seen that after the trade war that we have paused, then we have gone upside very fast. But you have seen that this consolidation was again like that only, एंड अभी हम फिर से यहाँ पे डाउन साइड आ गए. तो इस डाउन साइड का जो यूज है, या फिर आप देख लो इस डाउन साइड में कौन ट्रैप हुआ. मेजरली पीपल आर have invested heavily in this area, because after this breakout only they have gone long side is this area, because this was the breakout area. Because any zone is breaking out and then closing also, then उसके बाद हमें ऐसा कंफर्मेशन होता है यस इट कैस क्लोजिंग, तो हम वहाँ पे डाउन अपसाइड के लिए सोचते हैं और न्यू ऑल टाइम हाई ट्रिगर होता है. बट बिफोर मेकिंग ऑल टाइम हाई यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड के लिए सबको फंसा दिया. नाउ यू जस्ट सी हियर कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट बेरिशनेस आया, बिकॉज द रिजल्ट्स आर ऑफ द कंपनीज आर मेजरली कंपनीज आर नॉट गुड. आईटी सेक्टर हमारा इज ऑन डाउन साइड ओनली. सो बेसिकली दिस इज द ओनली करंट सिनेरियो इज गोइंग ऑन. तो अभी यहाँ पे आपको एज अ फ्रेश शॉर्ट्स, बिकॉज ऑलरेडी दोज पीपल हैव शॉर्टेड हियर, ऑलरेडी दे हैव गॉट वेरी मच गुड डाउन साइड. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हमें पुल बैक भी मिलता है यहाँ, देन ओ अगेन पुल बैक ही सेल होगा. ओके, you just see here in the daily time frame I will show. If market makes any pullback here, if market makes any pullback here again, so we will again see this downside, and 24,000 this area will be getting broken, because this is the monthly expiry. So expect, we can expect momentum also, because monthly expiry is going to come after 2 to 3 days. And you have to be very careful, because tomorrow is Sensex expiry. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर बैंक निफ्टी ऑल्सो. बैंक निफ्टी में हमारी जो क्लोजिंग हुई थी, वो क्लोजिंग ही हमारा वीकली क्लोजिंग के ऊपर हुआ था. बट आज जो गैप डाउन हुआ एंड देन इसके बाद हमें डाउन साइड मिला, तो इट शोज दैट अब बैंक निफ्टी का जो अगला टारगेट होगा वो 55,800 होगा. द नेक्स्ट मूवमेंट कैन बी पॉसिबल दिस लेवल्स, एंड दीज लेवल्स आर can be hunted by this bank nifty. So you have to be prepared. But अभी यहाँ पे fresh positions ऐसा हम ले भी नहीं सकते, because already we have taken good downside. So यहाँ पे entry अगर आप करोगे तो भी आपका risk reward management is not good. So in this case what we can do that, कि हम बस डेली टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे जाके ऐसा आज का जो पर डे का कैंडल की क्लोजिंग देख सकते हैं, लाइक दैट. if the current candle again closing downside, tomorrow again we are showing any downside, so again it will. तो अभी जो रैली आपको मिली है डाउन साइड का, अभी उतना गिरा नहीं एज फार एज द निफ्टी. तो निफ्टी में ज्यादा डाउन साइड मिला, पर अभी बैंक निफ्टी में नहीं. तो नेक्स्ट कैन बी द नंबर ऑफ बैंक निफ्टी, बिकॉज द मेजर रिजल्ट्स आर देयर इन द, और today you can see major banks like Axis Bank and Kotak Bank, they were very downside. So these are also important. तो यू हैव टू बी करंट मेक द व्यू ऑफ सेल ऑन राइज ओनली, बिकॉज आप अगर देखोगे कल भी मैंने बोला था सेल ऑन राइज का मार्केट है. बैंक निफ्टी ओपन भी हुआ तो वो ऊपर ही गया, उसके बाद सेल ऑन राइज का मार्केट आया. अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाओगे, 5 मिनट्स के चार्ट्स पे हम देखते हैं, एंड इन दी 5 मिनट चार्ट यू कैन सी दैट
कि मार्केट फर्स्ट आवर में, फर्स्ट 5 मिनट्स में एक बुलिश कैंडल बना था। आफ्टर द बुलिश कैंडल अगेन इट वेंट अपसाइड। तो यही होता है सेल ऑन राइज। तो कभी भी आपको सेल साइड करना है तो ऐसा राइज होने देना है, देन वहां पे आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड दैट शॉर्टर अपॉर्चुनिटी ब्रिंग्स मोर डाउन साइड एंड यू कैन कंटिन्यू द राइड। तो हमेशा जो मेजर ट्रेंड और एक माइनर ट्रेंड दो में से होते हैं, तो उसको भी फॉलो किया करिए। जस्ट सी द लास्ट 4 to 5 days व्हाट इज द ट्रेंड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द क्रूड ऑयल। तो करंटली क्रूड ऑयल में हम जो देखेंगे कि क्रूड ऑयल में ऐसा क्या हुआ। तो यू कैन सी एज पर दी फार एज आई कैन नो कि क्रूड ऑयल का जो मेजरली ऐसा ये आपको इस तरह से मिला था। ठीक है, तो दिस इज द ट्रायंगल पैटर्न जो ये आपको मिल रहा है। बट ये ट्रायंगल पैटर्न में ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लास्ट डे में हैवी सेलिंग हो रहा है, जिस आज के दिन में हैवी बाइंग हो रहा है। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो रहा है बिकॉज हम एक ट्रेंड मार्केट में नहीं, एक साइडवेज मार्केट में फंसे। एंड these sideways market are obviously making much more losses in the markets, and it will give you much losses. So ऐसे markets में quantity कम trade करो, and until unless we got any clear breakdown either this level or this level, okay। तो जब तक इस दोनों लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना मिले तब तक हम कोई ऐसा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं, बिकॉज मे बी पॉसिबल कल साइडवेज हो जाए एंड देन उसके बाद यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करे, एंड मोर पॉसिबिलिटी आर देयर बिकॉज द नेक्स्ट 3 to 4 days अगेन कैन बी साइडवेज। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल में थोड़ा सा क्वांटिटीज कम करके आप लोग ट्रेड करो, इफ एनी ट्रेड इज गिवन ऑन द मार्केट्स इनसाइड्स। अगर कोई व्यू भी बनता है तो भी हम व्यू को कैंडल बेसिस पे दिखे रहे हैं, बिकॉज आप देखो अब आज की कैंडल क्लोजिंग कैसे करी, ओके दिस इज द स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। बट एज पर द ट्रेंड यू कैन सी हियर कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर से फिर से नीचे आता है। तो कल अगेन हो सके फिर से आपका गिर जाए। तो as far I know that don't go long upside much and don't go short downside now. So अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉज लेना है क्रूड ऑयल में। डोंट गो फॉर द मार्केट करंटली। अब यहाँ पे हम पॉज करेंगे बिकॉज इन द वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो हमें थोड़ा सा पॉज कैंडल में दिख रहा है। पॉज मीन्स व्हाट, यू कैन सी दिस रेंज। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे, एंड दिस वीकली टाइम फ्रेम दिस इज द इम्पोर्टेंट। ये देखो ये दो लेवल्स में निकाले। सो दिस इज द रेंज ऑफ द कैंडल। Inside this only the crude is currently consolidating and market is from the last 1 week and ये second week होगा। तो होपफुली ये भी हो सकता है कि इस वीक भी हमें साइडवेज में मिल जाए। तो अनटिल अनलेस हमें इस रेंज का हाई या फिर लो ना ब्रेक करे तब तक हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो my from my side I will be ignoring till 1 August to crude oil। 1 August means up to unless 1 August तक आप इसको इग्नोर ही करो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द एनालिसिस सेशन। एंड अभी नेचुरल गैस में भी अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैस का जो हमारा व्यू है सेम लाइक सेल ऑन राइस का ही है। बट स्टिल वी आर सीइंग दैट कि हमें सेलिंग प्रेशर भी मिल रहा है, बाइंग प्रेशर भी थोड़ा सा मिल रहा था डेली टाइम फ्रेम पे। नाउ यू कैन सी द डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगेन वी आर सीइंग द सम सेलिंग प्रेशर फ्रॉम द टॉप। तो मे बी दिस कंटिन्यूज एज वी हैव एक्सप्लेन इन द वीकली एनालिसिस। बिकॉज आज मंडे है तो इसलिए कम ट्रेड्स मिले, एंड this is the gap that crude oil, sorry, that NG can go for filling, that is 260 to 255। so keep the levels on your charts, okay? So this is the daily analysis. Thank you, have a nice day and good night guys, bye bye, take care.